On the broadcast as we await the oath-taking ceremony is Varun Singh is joining us, a political analyst. Sir, any inside track that you can help us with as to who gets which portfolio? There has been a lot of wrangling, meetings, travels to Delhi. Some people went to their village in the meantime, but optics has been bang in place. There have been smiling faces all around. Anything that you can share with us that you would know? To be very honest, saying anything, for example, if I would say that a minister would have this ministry, would be undermining the superpowers that the Bharatiya Janata Party leaders have of hiding things. But whatever we hear right now is that UD, that is the Urban Development Ministry, which is a very powerful ministry, which is a very cash rich ministry because it has all the municipal corporations, top municipal corporations, the richest municipal corporation in Asia, BMC, that would be probably given to the Shiv Sena because that is the ground on which probably DCM Eknath Shinde agreed to become the DCM and be part of the ministry. And that is a very powerful ministry. Second ministry, we are hearing that home, housing, not home probably Devendra Fadnavis, the chief minister, is taking with him. And housing is a very important ministry. Probably that is also going to the Shiv Sena, is what we are hearing, but there is no confirmation on it. There are many other important aspects. There are many ministries and there are many people who would be taking oath as minister that are very strategic over here. To be very honest, Nitesh Rane becoming a minister for the first time, he is a three-time MLA, once from the Congress and two times from the Bharatiya Janata Party from the seat called Kankauli in Ratnagiri. He becoming a minister would surely give some sleepless nights to Matoshri because he has been very vocal. And when I say Matoshri, it means the house of where Uddhav Thackeray, the former CM, and Aditya Thackeray, the former minister, stays. So he has been very vocal, very anti Uddhav Thackeray, very anti Aditya Thackeray, and probably that is one of the reasons why Nitesh Rane is also being accommodated, apart from his seniority of being a three-time MLA. But the biggest reason is that the Bharatiya Janata Party and the Shiv Sena would want to have someone in the ministry who can take directly a dig or a pot shot. Not just, and when I say a dig or pot shot, it doesn't mean by words, but even by actions against the Shiv Sena on whatever ground they can. Uddhav Thackeray led Shiv Sena. So that is one reason why we see Nitesh Rane. The other names which not very surprising, but where to be included is Ashish Shelar. This also one thing. This also mean that the state and the city of Bharatiya Janata Party, Mumbai city, would also get new new president, because both of them are being included in the ministry, the state as well as the city chief of Mumbai BJP. So that means new angles are being also dug out to see to it that, because the Bharatiya Janata Party gave this nara of in the next 2029 election, they want to have full majority on their own. And as Girish Mahajan, who was speaking from the airport, said that if you see many people from the in the ministry from the Bharatiya Janata Party are young or in their early 40s or early 50s, so that there can be a cadre that can lead the party in the coming days. Inside news, if you ask me, is that Shiv Sena will get what they had been promised, and especially urban development, as it is very cash rich, and home will stay with Devendra Fadnavis. Other ministries would be divided as it has been in the last tenure of the government. All right, stay on with me, Varun. Thank you for those insights. We've also got my colleague Atul, who is on the ground tracking all the developments. Atul, do you see any surprises coming our way when it comes to those 19 people who are going to take oath? जी देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रविंद्र चौहान, जो लास्ट महायुति में मिनिस्टर थे और काफ़ी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं बीजेपी के, उनका नाम काट दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें इस लिस्ट में नाम आ रहा है। और गणेश नायक, जो पहले एनसीपी से, जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार हुआ करती थी 2004 और 2009 में, उस समय वो मिनिस्टर रहे थे, लेकिन एक लंबे गैप तक वो मिनिस्टर नहीं रहे। इस बार वो और उनके बेटे दोनों जीत कर आए हैं, तो इस बार उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। इसमें जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है बीजेपी के, चंद्रशेखर बावनकुले,
उनका भी नाम इसमें आया है। एक सरप्राइजिंग काफी इंपॉर्टेंट नेम जो माना जा रहा है इसमें शामिल किया गया है। शिवेंद्र राजे भोसले ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं और तीसरी बार जो है ये एमएलए हुए हैं। दूसरी बार जो है बीजेपी से और पहली बार जब एमएलए बने थे तब एनसीपी से थे, जब अजीत पवार और शरद पवार एक साथ हुआ करते थे। ये जो नाम है काफी ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जा रहा है। महिलाओं को भी काफी ज्यादा, जो लेडीज हैं जो मिनिस्टर्स इस बार बन रही है बीजेपी कोटे से, उनको भी काफी ज्यादा तरजीह दी गई है। 4 जो है लेडीजों को इस बार बीजेपी के कोटे से मिनिस्ट्री दी जा रही है, जिसमें मीना बोर्डीकर का नाम है। तो पंकजा मुंडे खुद जो है 3 बार की मिनिस्टर रही हैं, काफी सीनियर लीडर मानी जाती हैं। उनकी भी बीते कुछ दिनों से जो खासतौर पे बीजेपी की जो लीडरशिप है और फडणवीस से जो एक नेता है उनके साथ काफी ज्यादा नाराजगी की भी बातें सामने आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको भी मनाने की कोशिश की गई है। एक चीज जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है, मराठा जो लेकर रिजर्वेशन को काफी ज्यादा डिस्प्यूट बीते कुछ दिनों में देखने को मिला महाराष्ट्र में, उसको लेकर जो है कॉर्डन करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस को की गई, या ओबीसी को जो है और मराठा वर्सेस ओबीसी करने की जो एक कोशिश की गई थी, उसका कास्ट कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो ये जो अभी तक फाइनल 19 जो लिस्ट सामने आ रही है, जिनमें नाम सामने आ रहे हो, उस चीज को भी ओबीसी और मराठा समाज से जो लोग आते हैं, नेता आते हैं, बड़े नेता हैं, उनको भी काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इतने दिनों से जो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र में एक बैठक चल रही थी, बैठकों का दौर चल रहा था और आखिरी मोहर जो नामों पे लगाई गई कल बीती रात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई थी जेपी नड्डा और अमित शाह की, तो उनमें जो फाइनल नाम आए हैं वो इसमें ये आ चुके हैं जो अभी टाइम्स नाउ पे एक्सक्लूसिव चल रहा है। इन सब के बीच में अतुल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि जो शिंदे टीम के जो मेंबर्स हैं, जो मंत्री शपथ ले रहे हैं, उनको एक एफिडेविट दिया गया है जिसमें उनसे कहा जा रहा है कि उनकी करंट मिनिस्टीरियल पोजीशन सिर्फ 2.5 साल के लिए होगी। जी देखिए, ये भी जो खबर आ रही है फिलहाल के लिए सोर्सेज से ही आ रही है, इसका कंफर्मेशन अब तक नहीं हुआ है। काफी देर से ये खबर चल रही थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले संजय सिरसाट, जिनका नाम इस समय जो अगर शिवसेना की तरफ से देखे लिस्ट में नाम सबसे ऊपर चल रहा है, उनसे भी हमारी जब बात हुई थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने साफ तौर पर टाइम्स नाउ से एक्सक्लूसिवली बातचीत में कहा था कि जो पोर्टफोलियोज अभी दिए जा रहे मिनिस्टर्स को, 5 साल सरकार चलने वाली है, ये जरूरी नहीं है कि वो पोर्टफोलियो उनके साथ ही रहे, वो चेंजेस हो भी सकते हैं, इसके बारे में आगे जाके बातचीत की जाएगी। तो उस दौरान ही उन्होंने एक तरह से संकेत दे दिया था, ना सिर्फ ये बातें शिवसेना की जो कोटे से पोर्टफोलियोज होंगे, मिनिस्ट्रीज होंगी, वो उस पर लेकर कह रहे थे, वो बीजेपी और जो बाकी साथी दल है उनके बारे में कह रहे थे कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में खासतौर पर पोर्टफोलियोज को लेकर आगे भी नेगोशिएशन होंगे और हो सकता है कि इंटरचेंज भी करते हुए हमें कुछ जो है तस्वीरें आएंगी कि जिसमें स्वैपिंग भी हो सकता है। इस चीज को लेकर जो प्लान आउट हो रहा था, इसी वजह से हफ्ते दिन से ज्यादा जो कैबिनेट एक्सपेंशन का डिले हो रहा था, वो सारे फॉर्मूले के ऊपर भी चर्चा हुई होगी। लेकिन अभी फिलहाल इस बात का कहीं कोई जिक्र या कंफर्मेशन नहीं आई है कि ऐसी कोई एफिडेविट भराई जा रही है। ये भी सोर्सेस के हवाले से या इस तरीके की खबरें आ रही हैं, अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन संकेत पहले से ही आने लगे थे। शिवसेना के जितने भी वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात हुई है तो कमोबेश वो इसी तरीके के संकेत दे रहे हैं कि अभी फिलहाल चूंकि कैबिनेट बनने में काफी ज्यादा डिले हो रहा है, विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, सेशन भी शुरू होने वाला है, 5 दिन का इंपॉर्टेंट जो विंटर सेशन कहा जाता है महाराष्ट्र के नागपुर में, वो भी शुरू होने वाला है। तो ऐसे में विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका न मिले, इसलिए कैबिनेट एक्सपेंशन कर दीजिए। यही वजह है कि जिस समय कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है, पोर्टफोलियोज के बारे में, उसके बारे में जिक्र नहीं किया जा रहा है। पोर्टफोलियोज के बारे में बाद में आगे जाके जो मीटिंग होगी, तीनों जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टियों के, वो बैठेंगे और उसके बारे में जो है पोर्टफोलियोज डिसाइड होगा। तो कुछ देखा जाए तो बीजेपी के पास इतना तो है कि जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है वो रहने वाले हैं। कुछ जो खास तौर पर जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, हाउसिंग हो गया, इस तरीके के जो है, पीडब्ल्यूडी भी जो है उसमें के बारे में भी बातचीत चल रही कि हो सकता है शिवसेना को दिया जा सकता है, और अगर शिवसेना के पास नहीं रहा तो एनसीपी के पास जाएगा। फिलहाल बीजेपी उस मिनिस्ट्री को अपने जो साथी दल है उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार है। बहुत सारी नेगोशिएशंस
अभी होना बाकी है, बट क्योंकि स्वेरिंग इन में डिले हो रहा था, ऑपोजिशन को एक मौका मिल रहा था, तो परहैप्स टू गेट rid of all those allegations and speculations, this swearing in is taking place. But Rucha is not joining